Hello everyone, we are live. Happy Sunday to all. So anybody who has the questions on technology or tech related questions, you can reach out to me. I hope my audio is good. Let's go with the release highlights first. So first is Infinix launched Hot 12 Play. That is the phone that they have launched at 8,500, and the first sale is starting from tomorrow 12 p.m. So the highlights of this phone is it comes with 6.82 inch HD plus display with 90 hertz and 6000 mAh battery and 4GB 64GB memory card. So that's good one. Then we have another release highlight that's from Firebolt. So Firebolt launched Ninja 3. It's smartwatch that starts at 1799, and it also comes with IP68 and it comes with SpO2 sensor. And the good thing about it is it's having 1.69 inch display, so it's a very good smartwatch for that price we are looking for. And the next one is Boat launched Adobe 175, which comes under 1699, and the fact about it is it comes with IWP Insta Wake Up pairing and the quad mic setup. So it also has the Bluetooth version 5.2. Also it has the playtime of 35 hours, so it's very good for the headphones. Next release highlight is Microsoft Build. So Microsoft had this developer conference of this year in which they announced quite a lot of stuff. The key stuff that we talked about was two. One is Power Pages. So that is nothing but the websites making tool. So earlier we had various website making tool. Now Microsoft is pitching in with its own tool, which makes it easy for you to create websites without learning HTML or CSS directly from the Power Based tool. And this Power Based tool is mostly codeless tool as well as drag and drop one, so easily anybody can look through that. Next one is Microsoft also launched its Microsoft Volterra project, which is for only developers. So it is allowing the Windows ARM builds and allowing users to developers to go ahead with develop applications on Windows ARM. So we are a little delayed with respect to Microsoft accepting ARM as the future, but then let's see what as they are coming up to. Next, one quick thing to know about is Logitech MX Master. It's their silent mouse, the latest version, which comes at $99. Let's see when it comes to India. But the good fact about it is it has the silent effect with the gaming mouse, so that's good thing to know. Next one is another deal that is coming up from Broadcom. Broadcom is thinking of buying VMware at $61 billion, so that's a big thing to talk about. So these were the release highlights. Let's go with the upcoming launches. So we are having iQOO Neo 6 lined up for 31st May, that is day after tomorrow, and we have the good thing about it is it comes with Snapdragon 870 and 80-watt charging, so that is a good thing. So anybody who was looking for a very good gaming phone, they can wait for some time, and iQOO Neo 6 would be a good surprise to you. Next one is Moto G82. Motorola is going to launch its another 5G phone, Moto G82, which will be mostly likely the Moto G71, but with AMOLED, and there are nice things with respect to AMOLED, and as well as some more new things coming in with respect to that phone. Next one is Petron. It's another tech product company which is launching a lot of IoT products. So one of them is their smartwatch that is going to be coming in some days now. Next one is LG Gram. So LG still is in the laptop business, and it's stopped this mobile business but still in the laptop business. So they have brought LG Gram 2022 edition, which will be coming with the 12th generation Intel processors. Next one is LG also launching monitors. So they have launched a new type of monitor, Vega monitor, and there is one more monitor that they have launched which is in square design. So it comes with 16:18 aspect ratio, which covers up to 16:9 screens. So that is another thing to look about. So these were the upcoming launches. So I see a lot of questions from all of you, and I would recommend you to go ahead and put it in the comment section below, either on Facebook or on YouTube. You can also follow my YouTube channel 5-Minute Techie AV. So you would be getting the release highlights and all the things same available there as well as some quick tips about some of things also available there. So let me quickly go ahead with Q&A session in Hindi. So पहला सवाल जो मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे वो है कि OnePlus 9 Pro लेना चाहिए, iPhone 12 लेना चाहिए, सैमसंग का S21 FE लेना चाहिए, मोटो S30 Pro लेना चाहिए, Vivo X80 लेना चाहिए, OnePlus 10R लेना चाहिए. मेरी प्रायोरिटी है कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले
और मेरे को गेमिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास साफ आंसर है Vivo X80 ले लो। लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आता है, बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप है उसके साथ, लेटेस्ट सेंसर्स के साथ साथ बहुत ही अच्छी कैमरा स्टेबलाइजेशन और सब कुछ मिलता है, गिम्बल स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। तो अगर आप खाली कैमरा के लिए ले रहे हो और बैटरी बहुत अच्छी मिल जाती है इसमें, और फास्ट चार्जिंग के साथ 80 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, और डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है, मतलब फुल HD एमोलेड डिस्प्ले है 2K के साथ। सो आप ले सकते हैं, ये 50,000 के आसपास मिलता है, 45,000 50,000 के आसपास, अभी ऑफर्स में 45 में मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया है वो है कि सभी चाइनीज़ ब्रांड फास्ट चार्जिंग पे फोकस कर रहे हैं और वो 150 वाट तक पहुंच चुके हैं, कुछ कुछ तो 200 वाट की भी बात कर रहे हैं। बट देन सैमसंग और एप्पल जैसी ब्रांड्स जो कि बहुत बड़ी स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं और इतने स्टेबल फ़ोन्स लेके आती हैं, वो क्यों 20 और 25 वाट चार्जिंग पे ही अभी तक अटके हुए हैं? तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा जवाब है कि सैमसंग और एप्पल जैसी ब्रांड आपके फुल एक्सपीरियंस पे फोकस करती हैं और लॉन्जिविटी पे फोकस करती हैं। तो आपके एक्सपीरियंस को और आपकी बैटरी को अच्छा चलाने के लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए वो स्लो चार्जिंग जैसी चीज़ों पे अभी तक मतलब लागू हैं उनके ऊपर। बट देन आगे जाके वो कुछ ना कुछ करेंगे इसके ऊपर, और फास्ट चार्जिंग के ऊपर वो भी काम कर रहे हैं, बट देख रहे हैं कि वो उतना अच्छा वो नहीं है। और कोई ऐसी स्टडी भी नहीं है जो ये बता रही है कि मतलब फास्ट चार्जिंग मोबाइल को किस तरह इम्पैक्ट करता है। तो ये पता भी नहीं है आप लोगों को और हम लोगों को कि कितना अच्छे से और कितने बुरे से आपका फ़ोन इम्पैक्ट होगा फास्ट चार्जिंग की वजह से। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन्स वही हैं जो ब्लास्ट हुए थे, तो पता नहीं कि फास्ट चार्जिंग की वजह से ब्लास्ट होते हैं या क्या रीज़न है, बट कोई ऐसी स्टडी है भी नहीं। तो मेरे हिसाब से कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा कि सैमसंग ऐसी ब्रांड भी, मतलब सैमसंग 45 वाट पे भी पहुंच चुका है, तो ऐसे भी एप्पल भी कुछ अलग चार्जिंग स्पीड लेके आ जाए। बट वो तो सोच रहे हैं कि मतलब वायरलेस चार्जिंग पे जाएं, तो देखते हैं क्या कैसे आगे रहता है। अगला सवाल जो मेरे से पूछा था वो है कि अगर हम Gcam यूज़ करते हैं, ये सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए होगा, Gcam यूज़ करते हैं तो मेरे कैमरा का आउटपुट अच्छा होगा कि नहीं? तो इसका सीधे से जवाब है कि Gcam एक मॉड है, एक एप्लीकेशन है जो कि गूगल की कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी लेके आता है आपके फ़ोन में। तो आपके कैमरा सेंसर का जो बेस्ट आउटपुट रहेगा वो आपको Gcam मॉड से ही मिलेगा। तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और आपको लग रहा है कि आपके कैमरा का उतना अच्छा परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, तो आप Gcam मॉड यूज़ कर सकते हैं, आपके कैमरा का बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अगला सवाल जो मेरे से पूछा था वो है कि टैबलेट्स मार्केट में 5G टैबलेट कब आने वाला है, और क्योंकि मेरे को खाली वाईफाई वाला टैबलेट नहीं लेना है। तो इसके लिए अभी तक तो कोई ऐसा कोई 5G टैबलेट नहीं है, बट 4G में बहुत अच्छा टैबलेट है एक आपका Xiaomi Pad 5 जो कि स्नैपड्रैगन 860 के साथ आता है, बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस लेके आता है और 25,000 के अंदर में आता है, तो बहुत सही प्राइसिंग है उसकी। लेकिन आगे जाके Realme एक टैबलेट लेके आ रहा है, Realme Pad X 5G, जो कि स्नैपड्रैगन 695 पे होगा, और ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है चाइना में भी। तो पहले चाइना में लॉन्च होगा, फिर इंडिया में आएगा, तो जून या जुलाई के महीने में, जुलाई एंड के महीने में आप ये देख सकते हैं, तो आप इसका इंतजार कर सकते हैं। अगला सवाल जो मेरे से पूछ रहे थे लोग कि मोटरोला का अभी करंट फ़ोन लेना चाहिए कि नया फ़ोन जो मोटरोला का G82 आने वाला है उसको ख़रीदना चाहिए? तो मेरे हिसाब से मोटरोला G82 5G फ़ोन होगा जो कि आपको जून एंड तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको मोटरोला का फ़ोन ख़रीदना है तो G52 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है 4G के लिए, और G71 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है 5G के लिए, तो आप इन दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। अगला सवाल जो मेरे से लोग पूछ रहे थे वो बोल रहे थे कि सैमसंग M52, M53 या मोटो S30। तो मेरे हिसाब से मोटो S30 एनी डे, ठीक है ना, क्योंकि मोटो S30 एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम फ़ोन है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि आपको 778G+ करके प्रोसेसर मिल जाता है जो कि बहुत स्टेबल है और बहुत परफॉर्मिंग प्रोसेसर है, बैटरी एफिशिएंट भी है, और इसी वजह से इसकी 4000 mAh बैटरी के बाद भी, मतलब थिन एंड लाइट डिज़ाइन के बाद भी आपको लगता नहीं है कि वो पूरे दिन के बाद भी बैटरी चलेगी, मतलब चल जाती है, 30% से ऊपर रह जाता है, काफ़ी लोगों ने बताया स्क्रीन ऑन टाइम 6 आवर्स के आसपास मिल जाता है। तो 4000 mAh बैटरी का अगर किसी को कंसर्न है तो मोटो S30 के बजाय सैमसंग M52, M53 ले ले। बट मेरे हिसाब से अगर आपको 5G फ़ोन चाहिए बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, बहुत ही अच्छे मतलब ब्रांड से चाहिए, तो मोटरोला S30 एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिल जाएगा, तो एंड्रॉयड 12 पे लेटेस्ट क्लीन एंड्रॉयड के साथ आपको ये मिल जाता है। अगला सवाल जो मेरे से पूछा था वो है कि कोई भी टेक प्रोडक्ट जो आपने रिसेंटली ख़रीदा हो और रिकमेंड करते हो। तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा जवाब है। मैंने एक रिसेंटली ये टेक प्रोडक्ट ख़रीदा था, अगर आपको मेरे कैमरा में दिख रहा है तो ये एक मोशन सेंसर लाइट है जो कि काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि कुछ लोग बेड पे लगा लेते हैं कि रात में अगर चलने के उठने के लिए ज़रूरत पड़ी तो ऑटोमेटिकली जल जाती है। तो इसमें एक ऑटो फीचर है कि आपको थोड़ी देर जलती रहेगी और ऑटोमेटिकली 20 सेकंड के अंदर जो मोशन सेंस होगा वो अपने आप, ये अभी बंद हो चुकी है, ठीक है। अब आपके सामने मोशन सेंस होगा तो अंधेरे में
खासकर अंधेरे में मोशन सेंस होगा तो ये 20 सेकंड के अंदर जल जाएगी और 20 सेकंड तक जलती रहेगी, ठीक है। और अगर आपको मोशन नहीं लगेगा तो 20 सेकंड के बाद ऑटो टर्न ऑफ हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छी लाइट मेरे को लगी जो आप खरीद सकते हैं। और ये छोटी सी लाइट अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूट्यूब वीडियो या कोई वीडियो शूट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी लाइटिंग है, देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो ये एक बहुत अच्छा लाइट सोर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे को 300 रुपीज़ में पड़ी थी, काफ़ी हद तक सही है। और इसमें माइक्रो USB चार्जिंग भी आती है तो कभी भी आप चार्ज भी कर सकते हैं इसको। और मेरे को ये 1 हफ्ते से ज़्यादा लास्ट करती है रोज़ शाम को जलाने के बाद भी, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये थे सारे मतलब सवाल आज के मेरे पास। और एक मेरे लिए आप लोगों के लिए जवाब है कि आप अभी करंटली अगर कोई स्मार्टफोन या कोई लैपटॉप वगैरह कुछ खरीद रहे थे तो उसके लिए कुछ मेरी तरफ से रिकमेंडेशन, जिसमें कि अगर आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं 25-26 हज़ार के रेंज में और आपको कोई ऑफ़र चाहिए तो iQOO 7 5G एक बहुत अच्छा ऑफ़र है जो कि गेमिंग लोगों के लिए बना हुआ है। लेटेस्ट रैम और फास्ट स्टोरेज के साथ आता है। ये 8GB 128GB वेरिएंट स्नैपड्रैगन 870 के साथ आता है। तो ये आपको 25-26 हज़ार रुपये में मिल रहा है। कैसे? क्योंकि ये 32,000 का है। इस पर आपको फ्लैट 3,000 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है और फ्लैट 2,000 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है किसी भी कार्ड ऑफर से लेने के लिए। तो टोटल 5,000 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है आपको 32,000 पे, 26,000 नेट पे मिल जाता है। अगला ऑफर जो है वो बहुत अच्छा है। वो 15,000 के अंदर अगर आप स्मार्टफोन खरीदे तो आपको ऑप्शन है Redmi Note 10 Pro। अगर आपको कैमरा और ओवरऑल डिज़ाइन अच्छी चीज़ चाहिए तो Realme 9 4G। अगर आपको खाली कैमरा पे फोकस चाहिए तो 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है ये। और Moto G52 अगर आपको ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए क्लीन एंड्रॉइड के साथ। अगला ऑप्शन है कि आपका 20,000 के आसपास बजट है और आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे थे तो मेरे हिसाब से आपके पास तीन ऑप्शन है। Xiaomi Lemon I 5G आप ले सकते हैं अगर आपको Xiaomi का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके अलावा आप ले सकते हैं Realme 9 Pro Plus 5G जो कि अगर आपको बहुत अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए कैमरा के साथ तो आप वो ले सकते हैं। और अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो iQOO G6 Pro ले सकते हैं, वो भी 20,000 के अंदर में मिल जाता है। ये तीनों फ़ोन 20,000 के अंदर मिल रहे हैं। ऑफर्स में 5-5 हज़ार रुपये का कैशबैक है इन सब पे और मतलब डायरेक्ट डिस्काउंट है 5-5 हज़ार का, तो आप ले सकते हैं। अगला ऑप्शन था कि जैसे 10,000 के अंदर में कौन से बेस्ट फ़ोन है जो आप ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से Moto G31 सभी लोगों के लिए जो ओवरऑल फ़ोन चाहिए 10,000 के अंदर, और Narzo 50 उन लोगों के लिए जिनको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए। ये आपको Helio G96 प्रोसेसर के साथ मिल जाता है। ये भी दोनों 10,000 के अंदर मिल रहे हैं डिस्काउंट्स के साथ। 30,000 के आसपास में बहुत अच्छा फ़ोन बताइए। तो 30,000 के आसपास दो ऑप्शन है मेरे हिसाब से। Moto H30 ज़्यादातर लोगों के लिए, और जिनको गेमिंग चाहिए बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली उन लोगों के लिए Realme GT2, ठीक है। तो इसके अलावा 35,000 के आसपास कोई अच्छा फ़ोन बताइए या उससे ऊपर के अच्छे फ़ोन बताइए। तो सैमसंग का एक ऑफ़र चल रहा है सैमसंग S20 FE 5G के ऊपर जो कि 33,000 में मिल रहा है आपको सारे डिस्काउंट्स के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी डील है। 865 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है आपको, कैमरा बहुत अच्छा मिल जाता है और सैमसंग का 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं। ये 2 साल पुराना फ़ोन है मेरे हिसाब से, 1.5 साल पुराना, बट फिर भी आपको 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट मिल ही जाएंगे। और बेस्ट कैमरा फ़ोन अगर आपको चाहिए तो Vivo X80 मैंने पहले भी रिकमेंड कर चुका है। इसके अलावा लैपटॉप्स में 1-2 ऑफ़र हैं जो मैं बता सकता हूँ आपको। तो अगर आपको 12th जनरेशन में लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए तो VivoBook 2022 ले सकते हैं जो कि 56,490 का 12th जनरेशन 1240p के साथ आता है। मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको लैपटॉप MI का चाहिए तो MI का भी ले सकते हैं। Mi Notebook Ultra i5 11th जनरेशन के साथ आ जाता है H सीरीज़ प्रोसेसर के साथ। और इसके अलावा गेमिंग के लिए अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो HP Victus ले सकते हैं, 57,000 से शुरू होता है। तो यही सब थी डील्स और ऑफर्स मेरे हिसाब से। थैंक यू जो मेरे को संडे को ज्वाइन करने के लिए।